कंपनी का शेयर रणबीर कपूर की तरह मैं उड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता. एंड दैट्स इट, योर कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. All right, guys, we have met to understand red herring prospectus and the exact way of how the companies in India come up with a public issue. So, in this video, we'll understand the entire timeline of how the companies come up with the public issue. Now, what happens is the provisions which are related to red herring prospectus, some of the provisions have been mentioned in Companies Act 2013, and the majority provisions have been mentioned in SEBI ICDR regulation. So what we will do is we'll do a fusion of both. So we will check out a complete code for red herring prospectus, and we'll understand how exactly the company has to plan their IPO process. Okay, let's try and understand red herring prospectus. And before that, let's try and understand the expression red herring, because there's a very interesting story of how this word or the expression red herring has been brought in place. So there's a very intriguing story. I think before we head further and before we check out red herring prospectus and the IPO process or the entire timeline of how the companies plan their public issues, let's first of all check out the meaning, the story behind this expression red herring. So let me flip. So what does the expression red herring means? What does this expression red herring means? So there's a very interesting story behind this expression. Now first of all, let us try and understand. The expression herring means the species of fish. एक मछली की प्रजाति का नाम है herring. So when it is cooked, it is grilled, to give a very smoky flavor, it actually becomes very red, and then it is called as a red herring fish. Okay. So basically, it's a species of fish, red herring species, red herring fish. So back then, what used to happen is whenever the training, whenever the dog squads were trained to test them, whether the dogs are following the proper leads or whether they are focused to their goal, what used to happen is जो उनको ट्रेनिंग दे रहे होते थे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो कोशिश करते थे इन डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करने की. कोशिश होती थी कि जो उनको जो स्मेल जो स्निफ कराया गया है, जिसका डॉग्स को पीछा करना चाहिए, उसके अलावा उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए. तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज द नॉर्म वाज दीस रेड हेरिंग फिशेस यूज्ड टू बी टाइड ऑन देयर टेल्स, and naturally these red herring fishes have a very pungent smell. So naturally the dog will get very distracted, because for us it might be a very pungent smell, but for a dog it might be very aromatic since it's their food as well. So this was the test of the dog squads कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिस बम पे ध्यान देना चाहिए उस बम के अलावा किसी दूसरे बम पे ध्यान जा रहा है. So ये कस्टम हुआ करता था डॉग स्क्वाड्स को टेस्ट करने का. और कुछ स्टोरीज ये भी बोलती कि हंटिंग डॉग्स को भी चेक करने के लिए प्रैक्टिस की जाती थी. So fundamentally, what is the meaning? What does this expression red herring means? It means distracting. It means giving a false lead. It means giving a false trail, setting up a false trail. थ्रिलर नॉवेल्स में, थ्रिलर मूवीज में जो डायरेक्टर होता है, जो स्क्रीन पे लिखता है, वो क्या कोशिश करता है कि ऑडियंस सोचे कि इनोसेंट ही कातिल है, इनोसेंट ही मर्डरर है. तो एक गलत लीड प्रोवाइड करना. द एक्सप्रेशन रेड हेरिंग मीन्स टू प्रोवाइड अ फॉल्स लीड, टू डिसीव समबडी, धुआं क्रिएट कर देना, इल्यूजन क्रिएट कर देना. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन रेड हेरिंग. नाउ यू थिंक we are going to talk about red herring prospectus. Now, dictionary meaning of red herring is deception, giving a false lead. So why red herring prospectus is named so, it is called so? क्यों हम इसे red herring prospectus बोलते हैं? Let's try and check out. Now what we'll do is we'll get into the expression red herring prospectus, and let us check out from the Companies Act 2013 what is the exact provision regarding red herring prospectus. I hope you understood where this
is coming from. Okay, so the dictionary meaning, again for your perusal, the dictionary meaning of red herring is deception, गलत सिग्नल देना, distractions, deceive करना. So I hope this word is very clear. Now let's get into the next point. Let's try and understand what is a red herring prospectus. कोशिश करते हैं red herring prospectus समझने की. So what is the meaning of red herring prospectus? Now red herring prospectus means an information memorandum or a prospectus which does not disclose complete particulars about the price of securities, price of shares, the number of shares which are going to be issued. तो यार ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें हम ये नहीं बताते कि हम शेयर्स एग्जैक्टली किस प्राइस पे देंगे, हम एग्जैक्टली कितनी क्वांटम ऑफ शेयर्स इशू करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने वाले हैं. आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा है? यू हैव टू चेक शेड्यूल 8 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस का आपको शेड्यूल 8 देखना पड़ेगा, उस शेड्यूल में ये मेंशन्ड है. सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस is a prospectus which does not disclose complete particulars about the price or quantum of shares. तो कभी भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में शेयर का प्राइस नहीं मेंशन किया हुआ होता है. हम ये भी नहीं बताते कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं. बट यस, व्हाट इज कंपल्सरी इज वी हैव टू मेंशन कि इशू साइज क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज रेजिंग 1100 crores, तो ये तो बताना पड़ेगा कि टोटल 1100 करोड़ रुपए का इशू है, तो इशू साइज बताना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू है हम वो नहीं बताएंगे. प्राइस एट विच वी आर गोइंग टू इशू शेयर्स वो भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन भी आ गई तो नेचुरली तीसरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगी. Now connected to the original meaning of red herring. Now this is the prospectus in which the most crucial information is not mentioned. The most crucial information is the price at which we are going to issue securities, not mentioned. तो हम ये बताते ही नहीं है कि किस प्राइस पे हम इश्यू करने वाले हैं. ठीक है? There are various reasons why it is done. There are various reasons why this is done. We'll come to that. I'm coming to the process. पूरा process देख रहे हैं. बहुत सारे रीजंस है, बट यस, फंडामेंटली एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई मस्ट टेल यू समथिंग. आई मस्ट टेल यू कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमें ये नहीं बताना होता, हम ये नहीं बताते कि हम किस प्राइस पे शेयर इशू करेंगे, हम ये भी नहीं बताते कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं. हाँ, हमें ये मेंशन करना होगा कि टोटल साइज ऑफ द इशू क्या है. तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कितना पैसा हम लोग रेज करने के लिए आए हैं. ठीक है? और नेचुरली हम लोग जब अपना इशू प्रोसेस शुरू करेंगे तब प्राइस डिस्कवर होगी. हमें ये पता करना होगा कि शेयर होल्डर्स किस भाव पे हमारे शेयर्स, इन्वेस्टर्स किस भाव पे हमारे शेयर्स खरीदने को रेडी हैं, एंड इवेंचुअली वहां से ये प्राइस डिस्कवरी होगी. देखते हैं हम लोग प्रोसेस में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट रैशनल स्टेप, द रैशनल प्रोग्रेशन आफ्टर दिस should be what is mentioned in Companies Act 2013. Is there anything which is mentioned in Companies Act 2013? तो क्या कुछ ऐसा है जो Companies Act 2013 में mentioned है? अगर हाँ तो वो क्या है? So let's check out what is mentioned in Companies Act 2013. Companies Act 2013 section 32 में exactly क्या लिखा हुआ है? Let us check it out. Now in section 32 Companies Act 2013, what has been provided for is the company may, अगर कंपनी चाहे तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर पब्लिक इशू ला सकती है. सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स कि अ कंपनी में इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इन केस द कंपनी इज विलिंग टू कम अप विद अ पब्लिक इशू. कंपनी चाहे तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करके इशू ला सकती है. दिस इज एन ऑप्शन. नाउ सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स, Section 32 subsection 2 provides that whenever we will open the issue for public, जब भी हमारा इशू ओपन होगा पब्लिक के लिए, एटलीस्ट उसके 3 वर्किंग डेज पहले, 3 डेज पहले हम लोगों को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी. आई रिपीट, हम जब भी हमारा इशू प्लान कर रहे हैं, से सपोज 1 नवंबर 2020 को हमारा इशू ओपन हो रहा है,
1 नवंबर 2020 को हमारा इशू ओपन हो रहा है, तो उसके 3 दिन पहले हम लोगों को आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी. When I will draw the timeline, it will be more clear. हम अभी टाइमलाइन बनाएंगे, इसमें चीजें और क्लियर हो जाएगी. Further, Section 32 subsection 3 provides that all the obligations for the fairness, regarding the fairness or the truthfulness of the prospectus, जो prospectus में fairness होनी चाहिए, जितना ट्रू डिस्क्लोजर्स, मटेरियल डिस्क्लोजर्स हमें प्रोस्पेक्टस में देने होते हैं, वही डिस्क्लोजर्स, वही उतनी ट्रूथफुलनेस के साथ यहां डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे. क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी अगर आपने मिस स्टेटमेंट डाल दी, अनट्रू फैक्ट्स डाल दिए या मटेरियल फैक्ट्स को ओमिट कर दिया, तो सेम लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी जो प्रोस्पेक्टस के लिए अट्रैक्ट होती है. सेक्शन 32 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स कि देखिए यार, जब हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया उसमें तो प्राइस डाला नहीं था हमने. वी डिड नॉट मेंशन अबाउट द प्राइस ऑफ शेयर्स. तो हमने ये तो बताया नहीं था कि प्राइस क्या है शेयर्स का. हमने ये भी नहीं बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम इशू कर रहे हैं. सो हमने जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइल किया था, तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दो क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिसिंग थी. एक कि कंपनी किस प्राइस पे इशू हो रहा है, दो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हमारा ये इशू ओपन हो जाता है, जब निवेशक अलग अलग भाव पर बोली लगा देते हैं, तो बेसिकली वहां प्राइस डिस्कवरी होती है. हम प्राइस तो नहीं बताते कि हम किस प्राइस पे शेयर इशू कर रहे हैं, हम उनको एक रेंज बता देते हैं किस रेंज में हमारा शेयर इशू होने वाला है. और उसके बाद पब्लिक को जो वैल्यूएशन सही लगती है, पब्लिक उस प्राइस पे अप्लाई करती है. तो व्हाट हैपेंस इज, फाइनली जब इशू क्लोज हो जाता है, जब हमारा इशू क्लोज हो जाता है, इशू क्लोज होने के बाद प्राइस डिस्कवरी होती है. वहां क्लियर हो जाता है कि किस प्राइस पे कंपनी शेयर अलॉट करने वाली है. व्हाट विल बी द इशू प्राइस. सो सबसेक्शन 4 ओनली प्रोवाइड्स दैट वंस द इशू इज क्लोज्ड, the prospectus has to be filed with ROC and SEBI. What is the only difference between red herring prospectus and prospectus? In the red herring prospectus, the price is not mentioned, the number of shares are not mentioned. If I add that information, अगर मैं red herring prospectus में भाव डाल दूं, number of shares डाल दूं, it becomes the prospectus. So subsection 4 only provides that the prospectus has to be filed with ROC and SEBI. Only this much has been provided for in Companies Act 2013. Okay. Whenever we talk about, now we did talk about section 32 and we saw whatever is mentioned in section 32 in Companies Act 2013. Now what happens is, now the public issues, जब भी कोई पब्लिक इशू आ रहा होता है हिंदुस्तान की, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, पब्लिक इशू दो तरीके के होते हैं. या तो वो एक फिक्स प्राइस इशू होता है, या तो वो एक बुक बिल्डिंग इशू होता है. Now what is fixed price issue? In the fixed price issue, the company is already aware कि उसके शेयर्स की कितनी डिमांड है. कंपनी ऑलरेडी जानती है कि what is the right price of the shares. इस केस में फिक्स प्राइस इश्यूज में कंपनी ऑलरेडी जानती है कि what is the appropriate price of the securities. तो जब भी कंपनीज फिक्स प्राइस इश्यूज लेकर आती है, तो फिक्स प्राइस इश्यूज में हम लोग नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. जब भी, आई रिपीट, जब भी हम लोग फिक्स प्राइस इश्यूज लेकर आते हैं, फिक्स प्राइस इश्यूज जब लेकर आते हैं, मैं बोल रहा हूं पब्लिक इश्यूज का एक टाइप है फिक्स टाइप इश्यूज, फिक्स प्राइस इश्यूज. तो जब भी फिक्स प्राइस इश्यूज आ रहे होते हैं, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है. और अगर हम नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, वी ऑलरेडी मेंशन द प्राइस ऑफ शेयर्स एट विच वी आर ऑफरिंग इट, the quantum of securities, the quantum of shares we are offering, and of course the issue size. Whereas public issues, book building issues भी हो सकते हैं. हम public issues की अगर टाइप्स की बात करें, तो कंपनी चाहे तो book building issues भी ला सकती है. Now what is a book building issue? Book building issue का मतलब जब कंपनी एक्चुअल में ये कोशिश कर रही होती है ये फिगर आउट करने की कि पब्लिक क्या प्राइस देने को तैयार है कंपनी के शेयर के लिए. बेसिकली अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा होता है, तो अगर हमें एग्जैक्ट प्राइस पता लगाना है कि पब्लिक क्या प्राइस देने को तैयार है, अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस डिस्कवरी करनी है, तो हम बुक बिल्डिंग इश्यूज लेकर आ सकते हैं.
जब हम बुक बिल्डिंग इश्यूज लेकर आते हैं तो हम ये नहीं बताते कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा शेयर्स का, हम ये भी नहीं बताते कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वांटम बता देते हैं, सॉरी हम सिर्फ इशू साइज बता देते हैं कि हमारा इशू का साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ रुपए का मेरा इशू आ रहा है, मैं ये बता दूंगा। तो हम लोग भाव नहीं बताते, हम प्राइस नहीं बताते। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कंपनीज के पास ऑप्शन होता है कि वो जब पब्लिक से पैसा रेज कर रही है तो वो बुक बिल्डिंग इशू लेकर आए, और अगर वो बुक बिल्डिंग इशू लेकर आएगी तो ऐसे केस में कंपल्सरीली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। बिकॉज अगर कंपनी को अपने शेयर्स की प्राइस डिस्कवरी करनी है, ये पता लगाना है कि पब्लिक क्या प्राइस पे शेयर्स लेने को तैयार है, हमें बुक बिल्डिंग इश्यूज में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। और कैसे प्राइस डिस्कवरी होगी ये अभी हम लोग प्रोसेस में देखेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम मैं रिपीट करता हूं, पब्लिक इश्यूज दो टाइप से हो सकते हैं, या तो फिक्स प्राइस इश्यूज या तो बुक बिल्डिंग इश्यूज। अगर फिक्स प्राइस इश्यूज आए तो कंपनी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, सब कुछ पता है, कंपनी जानती है कंपनी का शेयर किस भाव पे वैल्यूड है। अक्सर राइट्स इश्यूज जब आते हैं, जब कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है, अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो मार्केट जानती है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, बायर्स और सेलर्स ने डिसाइड करके रखा हुआ है व्हाट इज द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लिस्टेड कंपनीज है वो लोग फिक्स प्राइस इश्यूज लेकर आ जाती है। अगर फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ रहा है तो वो लोग फिक्स प्राइस इशू लेकर आ जाते हैं, बिकॉज द मार्केट प्राइस इज द फेयर वैल्यू, द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, बिकॉज द पब्लिक हैज डिटरमाइंड इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आईपीओज आते हैं तो वी टेस्ट वाटर्स कि क्या प्राइस पब्लिक देने को तैयार है। तो यहां हम क्या करते हैं, यहां हम लोग सिर्फ प्राइस नहीं देते, हम देते हैं प्राइस बैंड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल देंगे कि हम लोग कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक। तो टेक्निकली ये हमने प्राइस बैंड दे दिया, एक प्राइस रेंज बता दी कि किस प्राइस रेंज पे हम लोग शेयर इशू करने वाले हैं। ना फ्लोर प्राइस सेट है, मैंने बोल दिया 100 से 120, मतलब मिनिमम प्राइस क्या सेट हो गया, 100। अब अगर कोई इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, इफ दे आर रेडी टू पे 120 रुपीज पर शेयर, आई एम ऑल राइट। तो हमने बेस सेट कर लिया, फ्लोर प्राइस सेट हो जाती है। हम यहां एक प्राइस रेंज दे देते हैं जहां एक बेस प्राइस डिसाइड हो जाती है, जहां एक प्राइस बैंड डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर हमारे कंपनी की डिमांड होगी तो लोग यही 100 रुपए के शेयर को जो हमने फ्लोर प्राइस सेट किया है, हो सकता है इसको 120 में ले ले, हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर वैल्यूएशन करवाए और उसको लगे 115 रुपए इज द राइट प्राइस। सो यू नेवर नो इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यही तो काम है, इसका ही तो नाम है बुक बिल्डिंग। हम यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शेयर का क्या डिमांड है, हमारे शेयर को किस प्राइस पे लोग लेने को तैयार है। अगर मेरी कंपनी तगड़ी होगी, मेरी बैलेंस शीट तगड़ी होगी, मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तगड़े होंगे, हमारी बिजनेस मॉडल तगड़ी होगी, तो शायद पब्लिक मुझे कुछ प्रीमियम दे दे, फ्लोर के ऊपर शायद मेरा शेयर बिक जाए। That is the reason. We'll check out in detail how it happens. देख रहे हैं, थोड़ा समझा, थोड़ा। So पब्लिक इश्यूज दो टाइप के होते हैं, फिक्स प्राइस इश्यूज, बुक बिल्डिंग इश्यूज। फिक्स प्राइस इश्यूज नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग इश्यूज कंपल्सरी लिविज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। Okay, so now let's check out the process. अब हम पूरी टाइमलाइन बनाएंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। So let's get down to business. Let's check out the timeline, and then after the timeline we'll wrap. So all right guys, let's now check out the IPO process. हम लोग अब पूरा पब्लिक इशू प्रोसेस किस तरह से आएगा, एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या होगी, लेट्स नाउ चेक आउट द एग्जैक्ट टाइमलाइन ऑफ द पब्लिक इशू प्रोसेस। नाउ सबसे पहले तो अगर कंपनी अपना इशू प्लान कर रही है तो सबसे पहले तो कोई ना कोई तो आपने डेट डिसाइड की होगी कि आप किस दिन पब्लिक इशू ओपन करोगे। तो से सपोज आपने अपना इशू प्लान किया है 1 नवंबर को, और आपको तो पता ही कि अगर आप इशू ओपन कर रहे हो 1 नवंबर को तो मिनिमम 3 दिन, अगर आप सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस के शेड्यूल को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन है कि मिनिमम 3 days द पब्लिक इशू हैज टू बी ओपन। सो अगर मैं इशू 1 नवंबर को ओपन करता हूं तो मेरा इशू 3 नवंबर तक मुझे ओपन रखना पड़ेगा। सो से सपोज अगर मैं मेरा इशू 1 नवंबर को ओपन करता हूं और मैं इशू क्लोज करता हूं 3 नवंबर को,
तो सबसे पहली बात तो ये कि इशू अगर ओपन हो रहा है 1 नवंबर को, तो मुझे एटलीस्ट 1 नवंबर के 3 दिन पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा. सो आई विल हैव टू प्रोबेबली फाइल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद आरओसी एटलीस्ट हाउ मेनी डेज प्रायर? 3 days prior to opening of issue. तो मुझे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ इशू ओपन होने के 3 दिन पहले फाइल करना पड़ेगा. एंड इवेंचुअली जिस दिन हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइल करेंगे, उससे 30 days प्रायर, उससे 30 days प्रायर मुझे सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा. सो मेरा इशू जिस दिन ओपन हुआ उसके 3 दिन पहले मुझे आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा. जिस दिन मैंने आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया, उसके 30 दिन पहले मुझे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा सेबी के साथ. अच्छा, मैं ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसके थ्रू फाइल करूंगा? क्या इशूअर कंपनी डायरेक्टली काम करती है क्या? बिल्कुल नहीं. सो इशूअर कंपनी क्या करती है? किसी ना किसी मर्चेंट बैंकर को क्या बनाती है? एज लीड मैनेजर. इंडिया में अगर कोई पब्लिक इशू आ रहा है, इट इज कंपल्सरी कि हमको किसी ना किसी मर्चेंट बैंकर को एज अ लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा. एटलीस्ट 1 लीड मैनेजर हैज टू बी अपॉइंटेड. सो हूसोएवर द इशूअर कंपनी इज, जो भी इशूअर कंपनी होगी, वो इशूअर कंपनी लीड मैनेजर को अपॉइंट करेगी और थ्रू द लीड मैनेजर ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाएगा. और इवेंचुअली सेबी विल कीप इट. सेबी ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पब्लिक कमेंट्स के लिए कितने दिन रखेगी? मिनिमम 21 days इट शैल बी केप्ट ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स. पब्लिक कमेंट्स के लिए इसे 21 दिन सेबी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके रखेगी. 21 days सेबी विल कीप इट ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स. फिर से रिपीट करते हैं. नंबर 1, जैसे हमारा इशू ओपन होगा, इशू ओपन होने के हमको कितने दिन पहले आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा? 3 दिन पहले. जिस दिन हमने आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया, उसके कितने दिन पहले हमें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा? 30 days प्रायर. तो हम लोग जिस दिन आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे, उसके 30 days प्रायर हम लोग ड्राफ्ट सेबी के साथ फाइल कर लेंगे. यस. एंड इवेंचुअली 21 दिनों के लिए सेबी इसे पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन रखेगी. और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो शायद, सब कुछ अगर ठीक हुआ तो शायद इशू को अप्रूव भी कर देगी. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सेबी रजिस्टर कर देगी, अप्रूव कर देगी. If all the provisions have been followed, if appropriate disclosures have been made, probably SEBI will approve the draft red herring prospectus, and eventually once ये draft approve हो गया, it becomes red herring prospectus. और जिस दिन ये approve हो गया, उसके कितना दिन पहले, उसके कितना दिन के अंदर आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा? So it has to be then filed with ROC. ठीक है. आई विल नॉट एड द टाइमलाइन हियर सो दैट यू गाइज आर मोर कंफर्टेबल. हम लोग ये टाइमलाइन यहां नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है. पहले आप ये समझ लो कि ओवरऑल किस्सा क्या हो रहा है. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन? अब मान लो अब इशू ओपन हो भी जाए तो क्या होगा? अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पे तो बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को शेयर्स खरीदने हैं. लोग अपनी अपनी बोलियां लगाने को तैयार हैं. सारे लोग तैयार हैं. बहुत सारे लोगों को शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है. सब लोग बोलियां लगाने को तैयार है. सब लोग बिडिंग करने को तैयार है. बहुत सारे लोगों को आपकी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट होगा. पीपल आर रेडी टू बिड फॉर योर शेयर्स बट दे डोंट इवन नो व्हाट इज द प्राइस फॉर शेयर्स बिकॉज इट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वी डोंट डिस्क्लोज द प्राइस. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से तो हमने प्राइस तो बताया ही नहीं है.
तो ये जो शेयर होल्डर, ये जो इन्वेस्टर्स यहां पे हमारे इशू में सब्सक्राइब करने को तैयार भी है, एट व्हाट प्राइस दे विल सब्सक्राइब, बिकॉज देयर इज नो प्राइस विच इज ओपन. सो व्हाट हैपेंस इज, जिस दिन ये इशू ओपन होता है, जिस दिन ये इशू ओपन होता है, इसके 2 वर्किंग डे पहले, कितने वर्किंग डे पहले, 2 वर्किंग डे पहले आपको ओपन करना पड़ता है प्राइस बैंड. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हमने प्राइस तो बताया नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वी डिड नॉट डिस्क्लोज व्हाट इज द प्राइस. We did not mention at what price we will offer the securities, and hence we have to come up with the price band. हम लोगों को price band open करना पड़ता है. We do disclose, we do mention the range at which the shares are being offered. कितने दिन पहले? At least 2 days prior to the opening of issue. So now the new thing is that what is price band? Basically price band is a range. ये क्या होता है क्लास? What is the price band? Basically हम एक range बता देते हैं जिस range पे we will be offering our shares. Now what happens is price band में 2 चीजें होती है. एक होता है floor price, एक होता है cap price. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग हमारा शेयर 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की रेंज में ऑफर कर रहे हैं. सो द फ्लोर प्राइस, व्हाट इज द फ्लोर प्राइस? द फ्लोर प्राइस इज ₹100. इसका मतलब ये कि अब जितने भी लोगों को यहां पे बोलियां लगानी है, जो भी लोग हमारे शेयर्स खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, जो भी शेयर्स हमारे, जो भी निवेशक हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अब अगर वो लोग बोली लगाएंगे तो मिनिमम किस प्राइस पे बोली लगाएंगे? दैट विल बी द फ्लोर प्राइस. कम से कम जो बिडिंग होगी हमारे शेयर्स खरीदने के लिए, अब जो लोग बिडिंग करेंगे, द मिनिमम प्राइस फॉर द बिड वुड बी एटलीस्ट ₹100. ओके ओके. एंड मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा? कैप क्या रहेगी? 120. सो बेसिकली हम प्राइस बैंड में फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस बता देते हैं. What is the significance of floor price and cap price? The significance is, अब जितने भी निवेशक यहां बोली लगाएंगे, बहुत सारे निवेशक मान लो हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग की कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए रेडी बैठे हुए हैं. एवरीबडी इज रेडी टू बिड फॉर आवर शेयर्स. ऑफ कोर्स ये बिडिंग ऐसे नहीं होती, ये बिडिंग ऑनलाइन होती है. दिस इज फॉर जस्ट मेटामॉर्फिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो ऑल द बिड्स, जब भी कोई बिडिंग करेगा हमारे शेयर्स खरीदने के लिए, जो भी लोग बोलियां लगाने वाले हैं, जो भी लोग बिड करने वाले हैं, वो कम से कम किस प्राइस पे बिड करेंगे? फ्लोर प्राइस. और मैक्सिमम किस प्राइस पे बिड करेंगे? दैट इज कैप प्राइस. द रेगुलेशंस प्रोवाइड दैट फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच का मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 20%. The cap price shall not exceed 120% of the floor price. तो अगर ये 100 रुपए है तो ये 120 से ज्यादा नहीं हो सकता. सो बहुत सारे लोग होंगे जो शायद 100 रुपए पे ही कंपनी के शेयर्स खरीदने को तैयार होंगे. कोई लोग जिन्हें लगता है हमारी कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे कंपनी के, शायद वो 120 पे भी रेडी हो जाएंगे. सो अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस पे बिडिंग कर सकते हैं. हमने तो उन्हें फिक्स प्राइस बताया नहीं है. उन्हें जो प्राइस सही लगेगा वो लोग शायद उस प्राइस पे बिड करेंगे. जो डेस्परेट होंगे, जिनको पता है हमारे कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, जिनको पता है हमारी कंपनी एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ ऑपरेट करती है जो प्रोबेबली कोई दूसरी कंपनी ऑफर नहीं करती. अगर हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज, अगर हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, अगर हमारी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, तो शायद लोग 120 रुपए की वैल्यूएशन पे भी हमारे कंपनी के शेयर लेने को तैयार हो जाएंगे. यही तो होता है प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस. यही तो अलग अलग निवेशक अलग अलग प्राइस पे शेयर्स के लिए बिड करेंगे. इसी के बाद तो हमें पता चलेगा कि एट व्हाट प्राइस पीपल आर रेडी टू बाय आवर शेयर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड इवेंचुअली ये जब इशू ओपन होगा, इस दौरान ये जो 3 दिन का समय आप देख रहे हो, इस दौरान अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस पे
बिडिंग करेंगे. ऑफ कोर्स दिस बिडिंग इज ऑनलाइन, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस. द बिडिंग इज ऑनलाइन दीज डेज. द बिडिंग इज ऑनलाइन. एंड इवेंचुअली once this process is gone, ये 3 दिन जिन जिन लोगों को हमारे शेयर्स खरीदने होंगे, वो लोगों के पास ऑप्शन था. जिन जिन लोगों ने बिडिंग की होगी, उन लोगों के पास उनके प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे. हो सकता है उन्हें शेयर अलॉट हो जाए. नाउ नेचुरली व्हाट हैज हैपेंड इज, यहां पे इतनी सारी बिड्स आने के बाद एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारे शेयर्स की कितनी डिमांड है. और यहां पर होगी प्राइस डिस्कवरी. यहां पर पता चलेगा कि हमारे कंपनी के शेयर्स के लिए लोग कितना भाव देने को तैयार हैं. श्योर द प्राइस विल बी डिस्कवर्ड. एंड इवेंचुअली वंस एक बार पता चल गया कि लोग हमारे शेयर्स किस भाव पे लेने को तैयार हैं, हम लोग क्या करेंगे. अगर प्राइस डिस्कवर हो गया तो हम लोग प्राइस डिस्कवर होने के बाद प्रोस्पेक्टस फाइल कर लेंगे. किसके साथ? गाइस कम ऑन, इन योर माइंड एट लीस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू. आपको ये आरओसी के साथ और सेबी के साथ फाइल करना पड़ेगा. इनफैक्ट जो स्टॉक एक्सचेंजेस में या स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टिंग करवा रहे होगे, वहां पे भी आपको ये प्रोस्पेक्टस को फाइल करना पड़ेगा. ना अब आप बोलोगे सर क्या मिसाल, एग्जाम्पल दो. फॉर एग्जाम्पल अगर सारे लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग 100 रुपए पे ही लेने को तैयार है. अगर हमारे कंपनी की जो प्राइस डिस्कवरी है वो 100 पे हुई, इफ द मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आर रेडी ओनली एट 100 रुपीज, सो शायद मेरी कंपनी का प्राइस निकल जाएगा 100. इशू साइज तो हमको पहले से ही बताना पड़ता है, यस और नो. तो हमने इशू साइज तो हमने पहले ही बता दिया होगा. Pardon me for this. So अगर हमने इशू का साइज बता दिया था, से फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का हमारा साइज था, अगर मैं 100 करोड़ रुपए रेस कर रहा था, अगर प्राइस डिस्कवरी यहां हो गई तो नेचुरली क्वांटिटी भी निकल जाएगी. कितने क्वांटिटी में हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं वो भी निकल जाएगा. अगर 100 करोड़ टोटल इशू साइज है और प्राइस 100 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी हुई? 1 करोड़ शेयर. इसका मतलब अब मेरी कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू करेगी एट द प्राइस ऑफ ₹100 और मैं यहां पे तकरीबन 100 करोड़ रुपए रेस कर दूंगा. For your perusal, I again repeat, what is the difference? What is the difference between red herring prospectus and the prospectus? The only difference is the price was not mentioned in the red herring prospectus. Now, after the price discovery, we will add the price and it will become prospectus, and this has to be filed with ROC, with SEBI, with stock exchanges. Section 32, subsection 4 में mentioned था, अभी पढ़ा है ना? So now what will happen? सर अब लिस्टिंग कब कराओगे? सर लिस्टिंग करा दो जल्दी सर, और मत रुकाओ सर. तो जिस दिन आपका इशू क्लोज हुआ, इसको अगर आप टी मान लोगे तो T+1 2 3 4 5 6, ये जो T+6 डे होगा, ये जो 6वां दिन होगा, T+1 डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, T+6 में ये 6th डे पे जो ये इशू क्लोज हुआ उसके 6th डे पे अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी. किनको शेयर्स मिल रहे हैं, किनको शेयर्स नहीं मिल रहे, ये फाइनल हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड इवेंचुअली इसके 2 दिन बाद स्टॉक एक्सचेंज अलॉटमेंट फाइनल कर देगा और उसके बाद ये 6th डे पे, जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसको अगर हम टी माने तो उसके 6वें दिन पे, 6th टी के बाद 6th डे पे ये अलॉटमेंट फाइनल हो गई और 9th डे पे आपकी कंपनी का शेयर रणबीर कपूर की तरह, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता. एंड दैट्स इट, योर कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो एग्जैक्ट प्रोसेस ये था कि ये तरीके से काम हो रहा होता है.
This is how it happens. Now, what I'll do is I'll just zoom and I'll focus on each concept right from the beginning till the listing of share. Give me 1 second. What I will do is I will take 1 minute and in 1 minute I will again explain you the entire process. यहाँ आपकी कंपनी का शेयर लिस्ट हो चुका है. Now what we will do is now in next 1 minute I will take you to the entire process. मैं पूरा प्रोसेस आपको फिर से एक बार समझाऊंगा. हम लोग 1 मिनट में पूरे प्रोसेस को रिवाइज करते हैं. Just give me a moment. All right guys, let's have a very quick recap of the entire process. So यार सबसे पहले तो क्या होता है. सबसे पहले तो मान लो हमारी इशू ओपनिंग डेट मान लो सबसे पहले हमारी इशू ओपनिंग डेट हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा इशू ओपन होगा 1 नवंबर को. तो नेचुरली मिनिमम कम से कम कितने दिन के लिए इशू ओपन होना चाहिए? 3 दिन के लिए. तो अगर हमने डिसाइड किया कि हमारा इशू ओपन होगा 1 नवंबर से 3 नवंबर, तो होता क्या है, रेगुलेशंस के हिसाब से इशू ओपन होने के 3 दिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करनी पड़ेगी. कितने दिन पहले? एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ इशू मुझे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी. ना फर्दर जिस दिन मैंने आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया उसके एटलीस्ट कितने दिन पहले? एटलीस्ट मुझे 30 days पहले सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा. सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो फाइल होगा वो भी जो भी इशूअर कंपनी होगी वो डायरेक्टली नहीं करेगी, वो इशूअर कंपनी करवाएगी थ्रू द लीड मैनेजर. तो जो भी इशूअर कंपनी है, जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, जो भी कंपनी का पब्लिक इशू है, वो अपॉइंट करेगी एक मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर टू द इशू और उसके थ्रू ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाएगा सेबी के साथ. इवेंचुअली सेबी इसको 21 दिनों के लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए अपने वेबसाइट पे ओपन रखेगी और इवेंचुअली अगर सारी डिटेल्स ठीक है, डिस्क्लोजर्स फेयर हैं, सेबी इज नॉट seeing any trouble with this, so eventually what will happen is SEBI will approve the draft and it will become the red herring prospectus. कोई केस में the A which I've written is here it represents that SEBI has given a go ahead. Once SEBI has given a go ahead, we file the red herring prospectus with ROC. कोई केस में जहां SEBI को लगता है वहां पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकती है. ओके, so now the red herring prospectus has been filed with ROC, but the problem is these bidders, they don't know. ये जो bidders हैं ये लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्राइस पे हमारा इशू ओपन होने वाला है. So what happens is before the issue is opened, 2 days prior to the opening of issue, the price band has to be opened. हमें प्राइस बैंड ओपन करना पड़ेगा कितने दिन पहले? 2 वर्किंग डेज बिफोर द आईपीओ इशू इज ओपन. तो इशू ओपन होने के 2 वर्किंग डेज पहले ये प्राइस बैंड ओपन हो जाएगा जिसमें हम एक रेंज बता देंगे कंपनी किस प्राइस पे शेयर देने वाली है. प्राइस बैंड में 2 चीजें होती है, एक फ्लोर प्राइस, एक कैप प्राइस. सो सपोज हमने बोला फ्लोर प्राइस 100 है और कैप प्राइस 120 है, तो मैक्सिमम गैप इन दोनों के बीच कितना हो सकता है? रेगुलेशंस प्रोवाइड कि इन दोनों के बीच मैक्सिमम गैप आप रख सकते हो 20% का. तो हम लोग प्राइस बैंड ओपन कर देते हैं. ये हम लोगों को उसी न्यूज़पेपर में हम इसे पब्लिश करते हैं जिस न्यूज़पेपर में अब तक हमने इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स दी थी. एंड उसके बाद ये बिडर्स जान जाते हैं कि कंपनी किस प्राइस में अपने शेयर्स ऑफर करने वाली है. तो ये रेंज इनको पता चल जाती है. तो अलग अलग बिडर्स अपने हिसाब से उन्हें जो वैल्यूएशन पे सही लगता है वो लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. सो हो सकता है किसी को लगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है तो वो शायद 120 में ही अप्लाई कर ले. किसी को लगता हो नहीं ये कंपनी का बिजनेस मॉडल उतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो 100 में ही अप्लाई करे. सो अलग अलग बिडर्स वैल्यूएशन के हिसाब से अलग अलग प्राइस पे अप्लाई करेंगे जब ये इशू ओपन होगा. तो ये जो पीरियड है 3 दिन इशू ओपन जिस दिन होता है इसे ही हम प्राइस डिस्कवरी पीरियड भी बोलते हैं. इसी दिन तो भाव तय होता है कि लोग हमारे शेयर्स को किस भाव में खरीदने को तैयार है. और नेचुरली अगर प्राइस निकल गया
तो क्वांटम भी निकल जाता है, क्योंकि साइज हमने पहले ही बता के रखा था। अब हम प्राइस भी डिटरमाइन कर लिए एंड इवेंचुअली द क्वांटिटी इज ऑल्सो डिटरमाइंड, और इसके बाद हम प्रोस्पेक्टस फाइल कर लेते हैं आरओसी के साथ, सेबी के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसको अगर हम टी माने तो इसके 6वें दिन पर T+6 डे पर अलॉटमेंट फाइनल हो जाती है, और 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज भी वो अलॉटमेंट को फाइनलाइज कर देती है। इवेंचुअली जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसके 9th डे पे आपके कंपनी का शेयर रणबीर कपूर की तरह मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ये आपकी कंपनी का शेयर लिस्ट। So this is the complete code. I hope you understood right from the filing of draft till the company gets listed. This is what happens. This is the entire process. So I hope you guys understood the process. So guys, this is how the companies in India list their securities. This is how the entrepreneurs in India, after slogging so hard in their life, after so many things, after going through so many things, this is how they list their companies. This is the exact process which is followed in India. So वो कहते हैं ना कि यार जब खून पसीना एक साथ कागज पर छपता है, टेबल बेड बन जाती है और ऑफिस घर भूख प्यास सब मिट जाती है, बाल बच्चे सब रुल जाते हैं, तब जाके साली एक कंपनी बनती है। So guys, I hope someday you also list your company or your client's company. So that's it from my side, guys. Thank you so much. You have been a very patient audience. Thank you. Bye bye.